24 ઝિલહજના બયાન કરી, તે સિવાય 24 ઝિલહજના તે મોજિઝો જાહેર થયો હતો જેને મોજિઝાએ બેસાત કહેવામાં આવે છે। ડિટેલમાં નથી જવું શું મોજિઝો હતો, ફક્ત તમને બતાવી દઉં ચટાઈવાળો મોજિઝો કે જે મોજિઝો એ હતો કે મૌલાએ કાયનાત એ ચટાઈ પર બેસીને અમુક લોકોના સાથે દુનિયાના અલગ અલગ જગ્યાઓ પર જઈને પાછા આવ્યા હતા। એ ડિટેલમાં તમે લોકો જોઈ લેજો કિતાબના અંદર। અને 25મી ઝિલહજ આ એ તારીખ છે કે જે અહેલે બૈત થાર અલૈહિસ્સલામ વિશે સૂરે દહર નાઝિલ થયો। તો આ પૂરા અઠવાડિયાને હફ્તે વહદત કહેવામાં આવે છે, વિલાયતે હફ્તે વિલાયત કહેવામાં આવે છે। તો હવે આપણી ખિદમતના અંદર પેશ કરું કે આ વિલાયત શું છે, વિલાયત ક્યારે સંપૂર્ણ થાય, વિલાયત ક્યારે પૂરી થાય। અગર જો આપણે એને ગદીરનો મતલબ એમ લઈએ કે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની મોહબ્બત મારા દિલના અંદર છે, બેશક અર્થ એનો સાચો છે, મૌલાએ કાયનાત મારા મૌલા છે। પરંતુ અગર આપણે આના અંદર ડિટેલના અંદર જશું તો આપણને ખબર પડશે આ મુઅમિનીનના સિવાય, મુહિબ્બાને અહેલે બેત સિવાય બીજા લોકો પણ દાવો કરે છે કે અમે પણ વિલાયતે અલીને માનીએ છીએ। જ્યારે આપણે કહેશું કે ભાઈ ઇમામ અલીથી મોહબ્બત રાખો, કે અમારાથી વધારે મોટું કોણ મોહબ્બત રાખે છે? જ્યારે બીજા મુસલમાનો પાસે જશું તો કહેશું કે ભાઈ અહેલે બેતથી મોહબ્બત રાખવી જોઈએ, અમારાથી વધારે કોણ વધારે મોહબ્બત રાખે છે? અઈઝાને મોહતરમ, વિલાયતના 4 ભાગ છે। જ્યારે એ 4 ભાગ સંપૂર્ણ રીતે આપણે અમલ કરીએ ત્યારે આપણે મુકમ્મલ વિલાયત કહેવામાં આવે છે। સલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ। आइए क़िबला, आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। વિલાયતના 4 ભાગ શહીદ મુર્તઝા મુતારી ફરમાવે છે કે જ્યારે આ 4 ભાગ મુકમ્મલ થાય ત્યારે કહી શકાય કે આ સહી વિલાયત રાખે છે, સહી મોહબ્બત રાખે છે। જવાન લોકોને ખાસ જાણ થાય કે જ્યારે આપણા સામે કોઈ બયાન કરે કે અમે પણ વિલાયતે અલી રાખીએ છીએ, અમારા પાસે પણ મોહબ્બતે અલી છે, તો આપણને એ જોવાનું છે કે આ 4 ભાગમાંથી કેટલા ભાગ એના પાસે પૂરા થાય છે। અગર 4 ભાગ પૂરા થાય છે તો સમજી લેવું કે આ ગદીરનો પાકો ચાહવા વાળો છે અને પાકો ગદીરી છે। અગર નથી થતા તો પછી એ અધૂરા છે। કુરાન મજીદની આયત વિલાયતના વિશે સૌથી પહેલા વલી કોણ છે તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા સૂરે બકરા આયત નંબર 257 ના અંદર ઇરશાદ ફરમાવે છે, અલ્લાહુ વલિયુલ લઝીના આમનુ, અલ્લાહ મુઅમિનોનો વલી છે, સરપરસ્ત છે। કુરાન મજીદ સૂરે માઇદા આયત નંબર 55, ઇન્નમા વલિયુકુમુલ્લાહ વ રસૂલુહુ, જે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ને બેટી આપી હતી એ આયત, અલ્લાહ વલી, રસૂલ વલી અને તે વલી છે કે જે હાલતે રૂકુના અંદર ઝકાત આપે છે। સૂરે નિસા આયત નંબર 59, અતિઉલ્લાહ વ અતિઉર રસૂલ વ ઉલિલ અમ્ર મિનકુમ, અલ્લાહની ઇતાઅત, રસૂલની ઇતાઅત અને સાહેબાને અમ્રની ઇતાઅત। તો સાહેબાને અમ્ર કોણ છે? આ અહેલે બેત થાર અલૈહિસ્સલામ છે। તો વિલાયત આ પ્રકારની છે। અલ્લાહની વિલાયત હોવી જોઈએ, એટલે કે અલ્લાહ આપણા સરપરસ્ત। નબીની વિલાયત હોવી જોઈએ, નબી આપણા સરપરસ્ત। અને માસુમીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની વિલાયત હોવી જોઈએ, એ આપણા માટે સરપરસ્ત। જ્યારે 3 વિલાયત મુકમ્મલ થાય છે ત્યારે ઇન્સાન મોમિન બને છે। પરંતુ 3 વિલાયત માટે 4 પાયા છે, આ 4 પાયા મુકમ્મલ હોય તો ઇન્સાન સાચો મૌલાઈ કહેવાય છે। સૌથી પહેલી વસ્તુ વિલાયતે મોહબ્બત,
ધ્યાન આપજો તો ખબર પડશે કે શું બયાન કરવા ચાહું છું કે જ્યારે આપણા સામે આવા સવાલો ઊભા થતા હોય, અમે ઇમામ અલીને ચાહીએ છીએ, અમે ઇમામે હુસૈનને ચાહીએ છીએ, અમારાથી વધારે કોણ ચાહવાળું હોય, તો આ 4 વસ્તુ હોવી જોઈએ. સૌથી પહેલી છે વિલાયતે મોહબ્બત. આના અંદર બધાય ગીરો આવી જાય છે. જે લોકો દાવો કરે છે કે અમે મોહબ્બત કરીએ છીએ, આયતે કુરબા બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, કુલ લા અસઅલુકુમ અલૈહિ અજરન ઇલ્લલ મવદ્દત ફિલ કુરબા. આ આયતના અંદર બધાય કહે છે મોહબ્બત કરીએ છીએ, અહેલે બેતથી મોહબ્બત કરીએ છીએ. અઈઝાન મોહતરમ, આ હદ સુધી બરાબર છે, મોહબ્બત કરે છે, પરંતુ મોહબ્બત જ્યારે આપણે પૂછવામાં જઈએ તો હર એક મઝહબવાળા એટલા સુધી કે જે લોકો કટ્ટરપંથી મુસલમાન જે કહેવામાં આવે છે, એ લોકો પણ પૈગંબર ઇસ્લામની હદીસ બયાન કરે છે, અદ્દિબુ ઔલાદકુમ અલા સલાસ ખિસાલિન. તમે તમારી ઔલાદની તાદીબ કરો, તમારી ઔલાદને અદબ શીખાડો 3 વસ્તુઓ ઉપર. કઈ? હુબ્બુ નબીયકુમ, તમારા નબીની મોહબ્બત તમે બચ્ચાઓને શીખાડો. વ હુબ્બુ અહલે બૈતકુમ, અહલે બૈતની મોહબ્બત તમે શીખાડો. વ અદ્દિબુલ કુરઆન, અને કુરઆનની તાદીબ અને કુરઆનના અદબ શીખાડો. અઈઝાન મોહતરમ, આ એ લોકો કે જે કટ્ટરપંથી કહેવામાં આવે છે મુસલમાનોના અંદર, એ લોકો પણ આ હદીસ પેશ કરે છે. વિલાયતે મોહબ્બત બધાય રાખે છે. અને એટલા સુધી કે અગર આપણે જોઈએ, જ્યારે ઝિયારતમાં આપણે જઈએ તો ઝિયારતના અંદર ઘણા એવા લોકો કે જે આપણે શિયાના સિવાય પણ ઘણા લોકો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામથી મોહબ્બત જે કરે છે, એ લોકો ઝિયારતના અંદર આવ જાવ કરતા હોય છે. આ શું છે? વિલાયતે મોહબ્બત. આ વિલાયતે મોહબ્બત પણ એમને ફાયદો આપશે, એમને ફાયદો પહોંચાડશે, ચાહે પછી દુનિયાના હદ તક હોય કે પછી ઝાહેરી હદ તક હોય. મુસલમાનનો સિવાય જોઈએ, મસીહી, ક્રિશ્ચન, એ લોકો પણ, જેનું નામ છે તારીખના અંદર જોર્જ જોર્દાક, જે ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલામનો એટલો મોટો આશિક, એટલો મોટો મોહિબ, એટલો મોટો ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલામનો ચાહવાવાળો કે ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલામની જિંદગીના ઉપર આખી પૂરી કિતાબ લખી દીધી. સૌતો અદાલતુલ ઇન્સાનિયા, ઇન્સાનિયતના અંદર જે અદાલતની આવાજ હોય તો એનું નામ છે અલી. કોણ? એક ક્રિશ્ચન, ઈસાઈ. તો આ પણ મોહબ્બત છે. આ છે વિલાયતે મોહબ્બત. એક જાપાનનો ક્રિશ્ચન અંતવા બારા નામનો માણસ છે, એ પણ અશાર કહે છે ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલામની શાનના અંદર, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શાનમાં. આપણને દેખાય છે ગैर મુસલમાન પણ ઇમામે હુસૈનથી, ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલામથી મોહબ્બત કરે છે. આ એ લોકો છે કે જે વિલાયતે મોહબ્બત રાખે છે. આ પહેલા પ્રકારની વિલાયત. એનાથી આગળ જોઈએ બીજા પ્રકારની મોહબ્બત, વિલાયત જે છે એનું નામ છે વિલાયતે મરજઇયત. ફક્ત વિલાયતે મોહબ્બત કાફી નથી, બલકે વિલાયતે મરજિયત હોવી જોઈએ. એટલે કે પોતે એ રીતે પોતાના દિલના અંદર યકીન અને અકીદો હોવો જોઈએ કે મારું યકીન, મારો અકીદો છે કે દીનના અંદર, ઇલ્મના અંદર સૌથી વધારે અગર કોઈ માણસ છે તો અહેલે બેત અલૈહિમ સલામ છે. મોહબ્બત તો હતી, પરંતુ હવે ખબર નથી ઇલ્મના અંદર વધારે ગણે છે કે નથી ગણતા. બીજાઓને ઇલ્મના અંદર વધારે ગણવા લાગે તો આ મુકમ્મલ નથી. વિલાયતે મરજિયત હોવી જોઈએ. એટલા માટે અગર જોઈએ તો બીજા ખલીફાએ શું બયાન કર્યું હતું? અલીયુન અલમુના, અલી અમારા સૌથી કરતા સૌથી વધારે ઇલ્મ રાખનાર અલી છે. તે સિવાય ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલામ પોતે પોતાના ઘરના અંદર 25 વર્ષની જિંદગી વિતાવી, પરંતુ જ્યારે પણ એ ખલીફાઓને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની જરૂરત પડતી હતી તો એ લોકો ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલામના દરવાજા ઉપર આવતા હતા સવાલ પૂછવા માટે
શા માટે આવતા હતા? એ લોકો જાણતા હતા કે અગર કોઈના પાસે સૌથી વધારે ઇલ્મ હોય તો ઇલ્મ અલી પાસે છે. અગર મુશ્કેલ સવાલોના અગર કોઈના પાસે હલ હોય તો એ અલીના પાસે છે. તો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને ઇલ્મના રીતે બુલંદ માનતા હતા, પરંતુ સાથે સાથે એમના અંદર કમી એ હતી કે એ લોકો અલીથી મોહબ્બત કરતા ન હતા. આ વિલાયત અધૂરી વિલાયત છે. તે સિવાય જોઈએ શરહ નહજુલ બલાગા, જે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની જે નહજુલ બલાગા કિતાબ છે એના ઉપર પૂરી શરહ લખી હતી 20 વોલ્યુમના અંદર. ઇબ્ને અબીલ હદીદ અહેલે સુન્નત વલ જમાતના એક મોટા આલિમ, મહાન આલિમે કિતાબ લખી દીધી અને 20 જિલ્દના અંદર, 20 ભાગના અંદર પોતે કિતાબ લખી દીધી. શા માટે? એટલા માટે કે ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલામને સૌથી વધારે આલિમ માને છે, પરંતુ સૌથી વધારે આલિમ માનવું કાફી નથી, બલકે દિલના અંદર અકીદો પણ હોવો જોઈએ. સૌથી વધારે આલિમના સાથે સાથે સૌથી વધારે અફઝલ પણ ગણવા જોઈએ, ત્યારે આ વિલાયતે મરજીયત પૂરી થાય છે. આના અંદર બંને કેટેગરીના અંદર ઘણા આપણને દેખાશે કે આ વિલાયત અમે રાખીએ છીએ, અમે મોહબ્બત કરીએ છીએ, અમારા પાસે દીનના અંદર સૌથી વધારે અલી અલૈહિસ્સલામ છે. આ ત્રીજી અને ચોથી કેટેગરી જે તમારી સામે બયાન કરું છું, આના અંદર ઘણાએ ઓછા આવી જશે, ઘણાએ ઓછા પાસ થશે. ત્રીજી વસ્તુ છે વિલાયતે હાકિમિયત. વિલાયતે હાકિમિયતનો શું મતલબ થાય? એમ ન હોવું જોઈએ જ્યારે આપણે બીજા લોકોના સામે કહીએ છીએ કે ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલામને અલ્લાહના રસૂલ 18મી ઝિલહજના 1.25 લાખના મજમામાં જ્યારે બયાન કરવામાં આવ્યા, મૌલા બયાન બનાવ્યા, જાનશીર બનાવ્યા, ત્યારે શું કહે છે? ખિલાફતનો હક તો જે છે અલીને જે આપવામાં આવ્યો એ સિયાસી તરીકેથી હતો, સિયાસતના રીતે જાહેરમાં ઇલ્મ હતું એટલે આપવામાં આવ્યો, પરંતુ ખલીફા બીજા લોકો છે. અઝાને મોહતરમ, વિલાયતે હાકમિયત, અગર કોઈ સાચી વિલાયત રાખે છે તો એનો એ અકીદો હોવો જોઈએ કે દરેક ક્ષેત્રના અંદર, દરેક મેદાનના અંદર, ચાહે સિયાસત હોય, ચાહે શુજાઅત હોય, ચાહે ઇલ્મ હોય, ચાહે અખલાક હોય, ચાહે કિરદાર હોય, હર એતબારથી સૌથી શ્રેષ્ઠ છે તો એ મૌલાએ કાયનાત અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ. સમાજના લેવલે દરેક રીતે જો સૌથી બહેતર છે તો અલી છે. આ અકીદો હોવો જોઈએ. આ અકીદાના અંદર ઘણા લોકો કેન્સલ થઈ જાય છે, મોહબ્બત રાખે છે, અલી સૌથી વધારે ઇલ્મ રાખે છે, પરંતુ જ્યારે કહેવામાં આવે કે તમે બીજાઓ કરતા અલી અલૈહિસ્સલામને હુકુમતના અંદર, સિયાસતના અંદર, તમે ઇલ્મના અંદર, શુજાઅતના અંદર, સમાજના અંદર દરેક રીતે અલી અલૈહિસ્સલામ અફઝલ હોવા જોઈએ, ત્યારે એ લોકો ખસી જાય છે કે ના, અમે એ નથી માનતા, ત્યારે અમે નથી માનતા. તો વિલાયત મુકમ્મલ ક્યારે થાય છે? 4 પાયા: વિલાયતે મોહબ્બત, વિલાયતે મરજીયત અને આલમિયત, વિલાયતે હુકુમત, અને ચોથી અને છેલ્લી વસ્તુ છે વિલાયતે તસરુફ. વિલાયતે તસરુફ એટલે અલ્લાહના પ્યારા રસૂલ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે ગદીરે ખૂમના અંદર એલાન ફરમાવ્યું, મન કુંતો મૌલા ફહાઝા અલીયુન મૌલા, જે આપણા બાળકોને, બુઝુર્ગોને બધાને યાદ છે, પરંતુ આ બોલવા પહેલા અલ્લાહના રસૂલે એક લોકો પાસે વાયદો લીધો હતો, વચન લીધું હતું. વચન શું હતું? આ વચન એ હતું, અગર એ વચન તમે પાળો છો તો સાચા મૌલાઈ, અગર એ વચન ઉપર અમલ કરો છો તો તમે સાચા અલીની વિલાયતને તમે કબૂલ કરીને અલી તમારા મૌલા છે. એ વચન શું હતું? કે શું હું તમારા કરતા તમારા નફસોના ઉપર શું મારો અધિકાર વધારે નથી? તમારા જાત ઉપર તમારા કરતા વધારે શું હું અધિકાર નથી રાખતો? આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મતલબ સમજાવી દઉં બચ્ચાઓને, બાળકોને, જેથી વાત સમજમાં આવી જાય. આ જાત મારી જાત છે, હું છું,
પરંતુ મને કોઈ કહે કે ચાલ ભાઈ તારી ગરદન ઉડાવી દે પોતે હાથથી, તો કહે ભાઈ મારી ગરદન છે, હું શા માટે ઉડાવવું? પરંતુ અગર ઇમામ આવી જાય, નબી કહે, તો હવે આપણી શું જિમ્મેદારી છે? એના પર એમ કહેશું કે ના હમણાં તો નહીં આવવું? તારીખના અંદર મિસાલ મળે છે, એક્ઝામ્પલ મળે છે. એક જ રાત થઈ હતી શાદીની, જનાબે હંઝલા, એક જ રાત શાદી થઈ, સવારના એલાન થયું, ચલો મેદાન જંગના અંદર રસૂલ ઇસ્લામ તરફથી જ્યારે એલાન થયું, લોકો તૈયાર થઈ ગયા મેદાનમાં જવા માટે. એ એક જ રાતનો દુલ્હો એ પણ તૈયાર થઈ ગયો. અલ્લાહના રસૂલનો હુકમ છે તો હવે મારી જાત પર મારો કોઈ અધિકાર નથી. અઈઝાન મોહતરમ, અગર જો આ આપણા અંદર આવી ગયું કે જ્યારે હું કોઈ વસ્તુ કરી રહ્યો હોય તો એ જોવાનું છે મારું નથી, મારા મૌલાને શું પસંદ છે, મારા નબીને શું પસંદ છે, મારા ઇમામને શું પસંદ છે. અગર જો આ આવી જાય તો આપણે મુકમ્મલ રીતે વિલાયતને ઇખ્તિયાર કરી લીધી છે. એનું નામ તારીખના અંદર છે હંઝલા. રાતના શાદી થઈ, થયું, મેદાનમાં ગયો, શહીદ થઈ ગયો, અને એના અંદર જ્યારે એની મૈયત લાશોના દરમિયાનથી પાછી લાવવામાં આવી તો લોકોએ જોયું કે એના વાળમાંથી પાણીના ટીપા પડી રહ્યા હતા. અલ્લાહના રસૂલને પૂછવામાં આવ્યું કે અલ્લાહના રસૂલ, આ શું છે? આ માણસના વાળમાંથી પાણીના ટીપા પડી રહ્યા છે. કહ્યું કે એ માણસ છે કે જેમને ફરિશ્તાઓએ ગુસલ આપેલું છે, અને ગસીલુલ મલાઇકા કહેવામાં આવે છે, ફરિશ્તાઓ ગુસલ આપેલું છે. તો અઝીઝાને મોહતરમ, વિલાયતે તસરુફ એને કહેવાય કે જે રસૂલ ઇસ્લામે એલાન ફરમાવ્યું હતું કે તમારા જાત કરતા શું હું વધારે હક નથી રાખતો, અધિકાર નથી રાખતો. અગર જો આ વસ્તુ હોય તો સાચી રીતે સાચા વિલાયત વાળા કહેવા આવે છે. અઈઝાન મોહતરમ, તો કુરાન મજીદના અંદર પણ એ જ આયત, સૂરા અહઝાબ આયત નંબર 6, અન્નબીઓ ઔલા બિલમુમિનીન મિન અનફુસિહિમ, નબી વધારે હક રાખે છે મોમિનોના નફસો કરતા. અગર આપણે જાતથી વધારે આપણે નબીથી મોહબ્બત કરતા હોય, અલીથી મોહબ્બત કરતા હોય તો આ સાચી વિલાયત છે. આ 4 વિલાયત જ્યારે મુકમ્મલ થાય ત્યારે એ માણસ સાચો મૌલાઈ કહેવાય. ત્યારે એ મનકુંતો મૌલા ફાઝા અલીયુન મૌલા પર અમલ કરતો થઈ જાય છે. વિલાયતે મોહબ્બત હોય, વિલાયતે મરજિયત અને આલમિયત હોય, વિલાયતે હાકમિયત હોય, અને વિલાયતે તસરુફ હોય કે પોતાની જાત કરતાં વધારે હક આપણા નબી આપણા પર રાખે છે. તો અઝીઝાન મોહતરમ, આ વિલાયતનો મુખ્તસર અર્થ આપણે ખિદમતમાં સમજાવી દીધો, જેથી આપણને ખબર પડે કે આ ગદીરનો દિવસ તો થઈ ગયો, હવે આપણને શું કરવાનું છે? આ 4 વસ્તુ, આ 4 પાયાને મજબૂત કરવાના છે, જેથી કરીને કે મૌલા અલી પોતે કહે કે આ મારો ચાહવા વાળો છે ને મારો મૌલાઈ છે. સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. इलाही बेहक ज़हरा व अबीहा व बालिहा बनी मेरे अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद दा सदकामा. ऐ मारा महबूद, हमारा गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा माफ़ फरमा. ऐ मारा अल्लाह साचा मौलाई बनवानी तौफीक नसीब फरमा. आज की तारीख ना सदकामा हमारा तमाम मरहूमीन ने जन्नत में बुलंद रजा अता फरमा. ऐ मारा अल्लाह अहले बैत तारलेमुस्सलाम ने हमारा आमाल थी खुशनूद फरमा. ऐ खुदा बेहक मोहम्मद व आल मोहम्मद, ऐ मारा महबूद हाजरीन ने तमाम ने हाजतों पूरी फरमा. ऐ मारा अल्लाह दुनिया ने आखिरत में कामयाबी और नसीब फरमा. ऐ खुदा बेहक मोहम्मद व आल मोहम्मद, तारी आखिरी हुज्जत वक्त इमाम इमाम असर अलैहिस्सलाम ना ज़हूर में ताजील फरमा, तिमना अंसार मा शुमार फरमा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना रिजवान अली साहब. महफिल का आगाज़ बाकायदा हो चुका है. बाहर जो लोग खड़े हैं उनको नम्र गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ लाए.
और ख़ास करके उलमा इकराम और खुसूसी मेहमान जो शोरा आ चुके हैं हमारे पास, उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि हम स्टेज पे तशरीफ़ लाए। उलमा इकराम और खुसूसी शोरा इकराम और अपने जमात के भी जो भी खुसूसी शोरा है, सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। उनके इस्तकबाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। आप लोग आमादा हो चुके हैं कि नहीं, इसके लिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अगर आप लोग आमादा हो चुके हैं तो मैं निज़ामत के लिए मेहमान शायर को मैं हवाले कर दूंगा। 4 मिसरे। चुप है माबूद तो फिर आलमे हू बोलता है, लहज़े हैदरे कर्रार में तू बोलता है। खास तवज्जो। चुप है माबूद तो फिर आलमे हू बोलता है, लहज़े हैदरे कर्रार में तू बोलता है। नाम हैदर पे लगाते रहे नारा हम लोग, नाम हैदर पे लगाते रहे नारा हम लोग, ये तो हम लोगों का पाकीज़ा लहू बोलता है, ये तो हम लोगों का पाकीज़ा लहू बोलता है। जैसा आमादगी चाहिए ऐसे आमादगी नहीं मिली। खास तवज्जो। अगर आप आमादा नहीं होंगे तो मैं निज़ामत के लिए मैं नहीं दूंगा, मैं पढ़ता रहूँगा। खास तवज्जो। बता रही है सितारों के रुख की तावानी कि फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। खास 4 अशरों पे बता रही है सितारों के रुख की तावानी कि फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। सियाह चेहरे हो जितने कहीं वो छुप जाए, सियाह चेहरे हो जितने कहीं वो छुप जाए, अली की मदह का सूरज निकलने वाला है, अली की मदह का सूरज निकलने वाला है। इन्हीं चार असरात से मैं गुजारिश करूंगा आसमी कानदरी से कि वो निज़ामत के लिए आए और आगे का प्रोग्राम वो अपने अशार से और शोरा के अशार से आपको मुनव्वर करें। अलीबा उला और अपने गांव के भी जितने वो शोरा है सबको मैं 10 मिनट गुजारिश करूँ उसके स्टेज पे तशरीफ ले आए। जिल फरजहुम। हाजरीन महफिल सलाम अलैकुम। सबसे पहले इस पुर नूर मसरत जश्न ईद गदीर की मुबारकबाद। एक बुलंद तरीन नारे सलवात। जिल फरजहुम। इमाम हुज्जत मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मान की बारगाह में पेश करता हूँ। और इस महफिल का आगाज़ 4 मिसरों के साथ करता हूँ। यहाँ से मुलाजा फरमाइएगा क्योंकि तवील शोरा किराम है और आप लोग का साथ चाहिए होगा। 4 मिसरे से देखूंगा कि आपकी समातें कितनी बुलंद है। यहाँ से समात फरमाएगा कि नबी के आल के दुश्मन ने कोशिश तो बहुत की, नबी के आल के दुश्मन ने कोशिश तो बहुत की, घटाने से मगर न घट सकी तौकीर दुनिया में, घटाने से मगर न घट सकी तौकीर दुनिया में। खुदा का अदल देखो महज एक बात छीनने पर, खुदा का शुक्र, खुदा का अदल तो देखो महज एक बाग छीनने पर, हजारों बागे ज़हरा हो गए तामीर दुनिया में, हजारों
खुसूसन मैं अहले मेहता को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना आलिशान मदरसा इमाम यहाँ पर बनाया है, उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारी सआदत है, हमारा किस्मत है कि हम अली के मानने वाले हैं, और अली के मानने वाले कभी जलील और रुसवा नहीं होते। समाज फरमाया कि अली कौन है, अली के साथ जहरा कौन है। समाज फरमाएगा कि समाज फरमाए 4 मिसरे यहाँ से कि एक ही नाम था बाहर से जली लिखा था, एक ही नाम था। पूरी तवज्जो चाहता हूँ चौथे मिसरे पर, मौलाना इजाजत है कि एक ही नाम था बाहर से जली लिखा था, भूख में बांटने वालों को वली लिखा था। एक ही नाम था बाहर से जली लिखा था, भूख में बांटने वाले को वली लिखा था। तो उसके चूल्हे से दुआ उठा तो साहिल दौड़े, उसके चूल्हे से दुआ उठा तो साहिल दौड़े। फातिमा जहरा की रोटी पे अली लिखा था, फातिमा जहरा की रोटी पे अली लिखा था। इन्हीं मिसरों के साथ में दावत सुखन नाते पाक के लिए बैरूनी शायर अहले कानोदर से तशरीफ़ फरमा जनाब मिसम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर आए, माइक पर आए और नाते पाक से महफिल का आगाज़ करें। उनके इस्तकबाल के लिए एक बुलंदतरीन नारे सलवात। बुलंदतरीन नारे सलवात। जब तक वो अपना कलाम तैयार करते हैं, 4 मिसरे समाज फरमाए, लेकिन अपनी हाज़िरी दर्ज कराने के लिए मौला अब्बास का वास्ता देता हूँ कि अपने दोनों बाजू सलामत है। दोनों बाजू को बुलंद करके एक नारा लगाता हूँ, दोनों बाजू बुलंद करके जवाब देना है, नारे माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे कि खुशी का दिन है, दीने खुदा मुकम्मल है, खुशी है, दीने खुदा मुकम्मल है। लगा के नारे हैदर गदीर हो जाए, लगा के नारे हैदर गदीर हो जाए। तो अली के चाहने वाले यही तो चाहा है, अली के चाहने वाले यही तो चाहा है। अली का जो भी है दुश्मन फकीर हो जाए, अली का जो भी है दुश्मन फकीर हो जाए। इन मिसरों के साथ मैं दावत सुखन दूंगा जनाब मिसम साहब को कि वो आए और आगाज़ कलाम करे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सबको ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ और अपना आगाज़ नाद शरीफ से पेश कर रहा हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु या मोहम्मद या या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद। कैसी इज़्ज़त आपने बस या मोहम्मद की
आसरा खुदा ने वो पजीराई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद। और एक पल में मुस्तफ़ा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफ़ा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफ़ा को अपने घर बुलवा लिया। अरे अपने बंदे की खुदा को ऐसी आई कि बस या मोहम्मद या मोहम्मद। और गिनते गिनते थक गई, गिनते गिनते थक गई, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। अरे मुस्तफ़ा के है ज़मीं पर इतने शहदाई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद। और ये शेर बतौर खास कि एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का हाल, एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का हाल। अरे क्या कहूँ यारो मुझे भी ऐसी नींद आई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह अपनी प्यारी आवाज़ के रजा सिरसवी साहब कहते हैं कि हम पे इल्ज़ाम है दुनिया का अली को हमने, हम पे इल्ज़ाम है दुनिया का के अली को हमने असहाबे पैगंबर से बड़ा कर समझा, असहाबे पैगंबर से भी बड़ा कर समझा। तो क्या करे सूरत हैदर ही कुछ ऐसी है रज़ा, क्या करे सूरत हैदर है कुछ ऐसी है रज़ा। काफिरों ने भी तो एक रात पैगंबर समझा, काफिरों ने भी तो एक रात पैगंबर समझा, काफिरों ने भी एक रात पैगंबर समझा, काफिरों ने भी एक रात पैगंबर समझा। क्योंकि ज़्यादा निज़ामत में ना करते हुए मैं अपने अगले शायर को आपकी समातों की नज़र करता हूँ। जनाब फ़तेह अली असामदी साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और आपकी समातों को सुरखरू करे। उनके इस्तकबाल के लिए एक नारे सलवात। बावाज़े बुलंद सलवात। नारा हैदरी। आप सबने ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक था। सलवात। हाँ अली 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 मौला
मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला। गदीरे खुम न मैदाने अलीनी ताज पोशी छे। गदीरे खुम न मैदाने अलीनी ताज पोशी छे। वरी जैने विलायत ए वलीनी ताज पोशी छे। नबीना बिस्तरे हिजरत निराते पोडवा वाला। नबीना बिस्तरे हिजरत निराते पोडवा वाला। खुदानी खास मर्जी ना धणीनी ताज पोशी छे। गदीरे खुम न मैदाने अलीनी ताज पोशी छे। वरी जैने विलायत ए वलीनी ताज पोशी छे। गरम रोटी न थेला तो कतारो ऊंटनी दीदी। गरम रोटी न थेला तो कतारो ऊंटनी दीदी। रुकुमा विंटी देनारा सखीनी ताज पोशी छे। गदीरे खुम न मैदाने अलीनी ताज पोशी छे। वरी जैने विलायत ए वलीनी ताज पोशी छे। कदी मेरा हाथ निकल्यो ते। कदी में राजना पर दाची चेनो हाथ निकल्यो थे। नबीना जानशी हक ना वसीनी ताज पोशी छे। गदीरे खुम न मैदाने अलीनी ताज पोशी छे। वरी जैने विलायत ए वलीनी ताज पोशी छे। कहे तत हीर बातिल नी बदी वाला हटी जाओ। कहे तत हीर बातिल नी बदी वाला हटी जाओ। किसावाड़ी अही पाकी जगीनी ताज पोशी छे। गदीरे खुम न मैदाने अलीनी ताज पोशी छे। वरी जैने विलायत ए वलीनी ताज पोशी छे। कदी आदम नी माटी गूंदनारा हाथ छे अधर। कदी आदम नी माटी गूंदनारा हाथ छे अधर। नबाज पोशी छे। गदीरे खुम न मैदाने अलीनी ताज पोशी छे। कुराने साख पूरे आयते जिब है अजिम आजे। कुराने साख पूरे आयते
अलीना लाल तारी तशनगीनी ताज पोशी छे गदीरे खूमना मैदाने अलीनी ताज पोशी छे फरी संताई बैठा कुफरना अंधार खैबर मो फरी संताई बैठा कुफरना अंधार खैबर मो गदीरी रोशनी मां रोशनी नी ताज पोशी छे गदीरे खूमना मैदाने अलीनी ताज पोशी छे वरी जैने विलायत ए वलीनी ताज पोशी छे हकीकत खूमना मैदाने वफाए पण नजर आवी हकीकत खूमना मैदाने वफाए पर नजर आवी ध्रुजे छे मौत थर थर जिंदगी ने ताज पोशी छे गदीरे खूमना मैदाने अलीनी ताज पोशी छे वरी जैने विलायत ए वलीनी ताज पोशी छे सलवात बेहतरीन आवाज़ में और अंदाज़ में ये थे जनाब फ़तेह अली असामदी साहब। उन्होंने अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही नायाब अशार आपकी समातों की नज़र किए। माहौल बहुत संजीदा है, देखता हूँ कि कौन इस मिसरों पे चुप बैठता है। अगर आप लोग पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो मैं अगला शायर आपके हवाले करूँगा कि रोज़े अजल से है यही दस्तूर कायनात, रोज़े अजल से है यही दस्तूर कायनात, पढ़ते नहीं बुरे कभी अच्छा लिखा हुआ, पढ़ते नहीं बुरे कभी अच्छा लिखा हुआ, रोज़े अजल से है यही दस्तूर कायनात, रोज़े अजल से है यही दस्तूर कायनात। जनाब अनीस सब्र साहब के मिसरे पेश करता हूँ कि रोज़े अजल से है यही दस्तूर कायनात, पढ़ते नहीं बुरे कभी अच्छा लिखा हुआ, तो हरगिज नहीं देखेगा सकीफ़ा मिजाज को, हरगिज नहीं दिखेगा ये सकीफ़ा मिजाज को, नामे अली के साथ ये मौला लिखा हुआ, नामे अली के साथ साथ ये मौला लिखा हुआ, नामे अली के साथ ये मौला लिखा हुआ। तो महुआ से आवाज़ दे रहे हैं जनाब काशिफ करबलाई के 4 मिसरे समाज फरमा लीजिए कि हम लोग, अल्लाह ने हमें जिस्म दिया है, सिर्फ जिस्म नहीं दिया, उसमें रूह भी डाली है। इस मिसरों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में कितनी रूह की कुव्वत है। 4 मिसरों से समाज फरमाएगा कि किसी बेजान पत्थर की तरह बेजान थोड़ी है। अगर बेजान नहीं है आप लोग तो बेदार होइए कि किसी बेजान पत्थर की तरह बेजान थोड़ी है, अली का जिक्र सुनकर चुप रहे नादान थोड़ी है।
माहौल आखिरी शायर तक होना चाहिए कि किसी बेजान पत्थर की तरह बेजान थोड़ी है, किसी बेजान पत्थर की तरह बेजान थोड़ी है। अली का जिक्र सुनकर चुप रहे नादान थोड़ी है। तो अली की मारिफत का मीम तक भी हम नहीं पहुंचे, अली की मारिफत का मीम तक भी हम नहीं पहुंचे। सबब क्या पूछते हो, हम सलमान थोड़ी है। सबब क्या पूछते हो, हम सलमान थोड़ी है। सबब क्या पूछते हो, हम सलमान थोड़ी है। सबब क्या पूछते हो कि हम सलमान थोड़ी है। अली के मारिफत के मीम तक भी हम न पहुंचे। सबब क्या पूछते हो कि हम सलमान थोड़ी है। इन्हीं मिसरों के साथ मैं अगला शायर जनाब मोहम्मद हसन पलसानिया साहब को आवाज़ दूंगा कि अपने तरन्नुम में बेहतरीन समातों की नज़र कुछ नजराने अकीदत पेश करें। उनके इस्तकबाल के लिए एक नारे सलवात। हाज़िरानी महफिल सलाम अलैकुम। आप सबको ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान। जिसका नहीं गदीर पे ईमान याली, जिसका नहीं गदीर पे ईमान याली, जिसका नहीं गदीर पे ईमान याली, कैसे मैं उसको मानूं मुसलमान याली, कैसे मैं उसको मानूं मुसलमान याली, कैसे मैं मानूं उसको मुसलमान याली। वो जो हुआ था बरसरे मैदान याली, वो जो हुआ था बरसरे मैदान याली, बहरों ने भी सुना था वो ऐलान याली, बहरों ने भी सुना था वो ऐलान। कि बहरों ने भी सुना था वो ऐलान याली, उठा ये कह के लाश सलमान याली, उठा ये कह के लाश सलमान याली, निकलेगी कैसे ऐसे मेरी जान याली, निकलेगी कैसे ऐसे मेरी जान या अली, कि अल्लाह सरफराज रखे उनको ताअबद, अल्लाह सरफराज रखे उनको ताअबद। हम आज जिनके घर पे हैं मेहमान याली, हम आज जिनके घर पे हैं मेहमान या अली, हम आज जिनके घर पे हैं मेहमान या अली। दुश्मन है तेरा जो भी वो इब्ने कसीर है, दुश्मन है तेरा जो भी वो इब्ने कसीर है, तेरे लिए नबी का है फरमान याली, तेरे लिए नबी का है फरमान या अली, के कदमों में है पड़े हुए जिसके तमाम ताज, कदमों में है
जिसके तमाम ताज है आप उस हुसैन के है आप उस हुसैन के सुल्तान जाली। खुशबू नजाब की आती है उस सरजमीन से के खुशबू नजाब की आती है उस सरजमीन से। जाता हूँ जब मैं शाह खुरासान याली, जाता हूँ जब मैं शाह खुरासान याली। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान। माशाअल्लाह अपने अंदाज में ये थे जनाब मोहम्मद हसन साहब। उन्होंने अकीदत के मिसरे आपकी समादों को नज़र किया। 4 मिसरे से यहाँ पर सुल्तान सुरूर के 4 मिसरे यहाँ से समाज फरमाइए कि चलते जाएंगे कलम कागज़ भी बढ़ता जाएगा। पूरी तरह से तवज्जो चाहता हूँ कि चलते जाएंगे कलम कागज़ भी बढ़ता जाएगा। एक हरफे करबला फिर भी न लिखा जाएगा। चलते जाएंगे कलम कागज़ भी चलते जाएंगे कलम कागज़ पे न लिखा बढ़ता जाएगा। एक हरफे करबला फिर भी न लिखा जाएगा। तो बाबे जन्नत पर नमाज़े दस्तक देगी मगर, बाबे जन्नत पर नमाज़े दस्तक देगी मगर करबला से पूछकर दरवाज़ा खोला जाएगा। करबला से पूछकर दरवाज़ा खोला जाएगा। करबला से पूछकर दरवाज़ा खोला जाएगा। एक बेहतरीन शायर आपकी समातों को नज़र करना चाहता हूँ कि अली की बात हो रही थी और मौला अली को कौन है कि जो समझे, या तो वो नबी समझता है या तो वो खुदा समझता है या फिर शहजादी फातिमा ज़हरा समझती है। हमारी औकात ही नहीं है कि हम अली को समझें। अगर हम अली को समझेंगे तो अली अली न रहेगा। समाज फरमाएगा कि बेशक दरे हसनैन अकबर साहब के 4 मिसरे आपकी नज़रों के सामने पेश करता हूँ कि बेशक दरे अली पे ज़बीने तो खम हुई, बेशक दरे अली पे तो ज़बीने तो खम हुई, ताईदे मनकबत में 100 बातें रकम हुई, ताईदे मनकबत में 100 बातें रकम हुई। लेकिन अली की मदह में मिंबर का है सवाल, लेकिन अली की मदह में मिंबर का है सवाल। मीसम के बाद कितनी ज़बानें कलम हुई, मीसम के बाद कितनी ज़बानें बुलंद हुई। बेशक वो मीसम तम्मार थे कि हज़ारों दुनिया में लाखों हरे भरे शजर थे, लेकिन उन्हें खजूर का ही साया पसंद था। समाज फरमाएगा कि मीसम तम्मार कौन थे? मीसम तम्मार वो थे जो दार पर चढ़ के अली की मदह की थी। उन्हीं मीसम तम्मार की मदह और मौला अली की मदह करने में शायर को आवाज़ दे रहा हूँ। जनाब शोएब अज़ादार से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और समाज को नजराने अकीदत पेश करें। बुलंद करें नारे सलवात। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। सबको मेरी आवाज़ आ रही है?
अस्सलाम वालेकुम। आप सभी हजरात को यौम तबस्सुम बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं नेता जमात को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इतना अजीम इमाम बारगाह तामीर किया है। इजाज़त चाहता हूँ किबला, इजाज़त है। आज की उन्वान पे एक कथा पेश करता हूँ कि दस्ते नबी पे आयते बल्लिक की छाँव में, 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 हैदर बना दिए गए मौला गदीर में। दस्ते नबी पे आयते बल्लिक की छाँव में, हैदर बना दिए गए मौला गदीर में। और बखिल लबों पे था मगर दिल में हसद की आग। दस्ते नबी पे आयते बल्लिक की छाँव में, हैदर बना दिए गए मौला गदीर में। और बखिल लबों पे था मगर दिल में हसद की आग, बदले मुनाफिकीन के तेवर गदीर में। बखिल लबों पे था मगर दिल में हसद की आग, बदले मुनाफिकीन के तेवर गदीर में, बदले मुनाफिकीन के तेवर गदीर में। और ये कथा देखेगा कि पले हो आले नबी के टुकड़ों पर, पले हो आले नबी के टुकड़ों पर, नमक हलाल हो तो नमक की बात करो। पले हो आले नबी के टुकड़ों पर, नमक हलाल हो तो नमक की बात करो। और कहा हो बाबरी मस्जिद बचाने वालों, कभी हमसे भी बागे फिदक की बात करो। बाबरी मस्जिद बचाने वालों, कभी हमसे भी बागे फिदक की बात करो। ममनून हूँ आप लोगों का कि कहा हो बाबरी मस्जिद बचाने वालों, कभी हमसे भी बागे फिदक की बात करो। और दावा जो तुम्हारा है वो अमलन भी दिखाओ। दावा जो तुम्हारा है वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफ़ी कहते थे। उस हवाले से मैं उनसे ये डिबेट कर रहा हूँ इस मतले में कथा में कि दावा जो तुम्हारा है वो अमलन भी दिखाओ। आखिरी फर्ज तक मेरा साथ दीजिएगा कि दावा जो तुम्हारा है वो अमलन भी दिखाओ, और आओ ज़रा सुन्नत के तकाज़ों को निभाओ। वो कहते थे कि रसूल अल्लाह का निकाह अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था और उनको काफिर कहा जा रहा है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि दावा जो तुम्हारा है वो अमलन भी दिखाओ। आओ ज़रा सुन्नत के तकाज़ों को निभाओ, या तुम भी या मानो मोहम्मद के निकाह खा को मुसलमान। दावा जो तुम्हारा है वो अमलन भी दिखाओ। आओ ज़रा सुन्नत के तकाज़ों को निभाओ, या मानो मोहम्मद को निकाह खा को मुसलमान, या तुम भी निकाह जाओ किसी काफिर से पढ़ाओ। निकाह जाओ किसी काफिर से पढ़ाओ। और मेरा दावा है मौला अब्बास के परचम के हवाले से देखेगा कि मेरा दावा है तेरी सोच का खम निकलेगा। मेरा दावा है तेरी सोच का खम निकलेगा, अश्क बनकर तेरे आंखों से भी गम निकलेगा। मेरा दावा है तेरी सोच का खम निकलेगा, अश्क बनकर तेरी आँख से गम निकलेगा। याद रख मुनकिर अब्बास वो दिन दूर नहीं। मेरा दावा है तेरी सोच का खम निकलेगा, मेरा दावा है तेरी सोच का खम निकलेगा, अश्क बनकर तेरी इस आँख से गम निकलेगा। याद रख मुनकिर अब्बास वो दिन दूर नहीं जब तेरे घर से भी गाजी का आलम निकलेगा। याद रख वो दिन दूर नहीं जब तेरे घर से भी गाजी का आलम निकलेगा। और ये एक मिसरा हुआ था कि मशकीज़ा महफूज है, शाह के खैमे में यूँ दीन खुदा महफूज है। लिखने वाले हज़रात इस पर तवज्जो करेंगे कि शाह के खैमे में ये यूँ दीन खुदा महफूज है। शाह के खैमे में यूँ दीन खुदा महफूज है।
शाह के खैमे में यूं दीने खुदा महफूज है, मश्क में जैसे जरी के अलकमा महफूज है। शाह के खैमे में यूं दीने खुदा महफूज है, मश्क में जैसे जरी के अलकमा महफूज है। और वास्ता गाजी का देके मैंने मांगी है दुआ, वास्ता गाजी का देके मैंने मांगी है दुआ, मुझको है पूरा यकीन मेरी दुआ महफूज है। और ज़ैनबो कुलसूम की मेहनत ने ये पाया सिला, ज़ैनबो कुलसूम की मेहनत ने ये पाया सिला, मजलिसे शब्बीर और फर्शे अज़ा महफूज है। खुल गया हिजरत की शब हैदर के हिजरत की शब हैदर के सोने से ये राज, मुर्तज़ा में मुस्तफ़ा की हर अदा महफूज है, मुर्तज़ा में मुस्तफ़ा की हर अदा महफूज है। गौर से मक्तल पढ़ी फिर मैंने ये मिसरा लिखा, गौर से मक्तल पढ़ी फिर मैंने ये मिसरा लिखा, खुल गया हिजरत की शब हैदर के सोने से ये राज, मुस्तफ़ा में मुर्तज़ा की हर अदा महफूज है। और गौर से मक्तल पढ़ी फिर मैंने ये मिसरा लिखा, हाथ बैयत के कटे शह का गला महफूज है, हाथ बैयत के कटे शह का गला महफूज है। और करबला को हो चुकी सदियाँ आज़ादारी मगर, मक्ता लिखेगा कि करबला को हो चुकी सदियाँ आज़ादारी मगर, आज भी गाजी का रोबो दबदबा महफूज है। कि आबिद थी जो दरबार में ललकार થઈ જશે, થઈ જશે રદીફ से બધા સમાત करे कि आबिद थी जो दरबार में ललकार થઈ જશે, आबिद थी जो दरबार में ललकार થઈ જશે, बैयतना जे तालिब छे ई फिन्नार થઈ જશે, आबिद थी जो दरबार में ललकार થઈ જશે, बैयतना जे तालिब छे ई फिन्नार થઈ જશે। અને પડદાએ ગैबतથી તરત આવી જશે મહેદી, પડદે ગैबतથી તરત આવી જશે મહેદી, જ્યારે 313 તૈયાર થઈ જશે। અને કોને ખબર કે હુર જે છે બાતિલનો સિપાહી, કોને ખબર કે હુર જે છે બાતિલનો સિપાહી, એક રાતમાં સરવરનો વફાદાર થઈ જશે, એક રાતમાં સરવરનો વફાદાર થઈ જશે। અને હવે બે શેર એરા કે જેના માટે મખસૂસ આ કલામ લખવામાં આવ્યો હતો કે કોને ખબર કે હુર જે છે બાતિલનો સિપાહી, એક રાતમાં સરવરનો વફાદાર થઈ જશે, આબિદથી જો દરબારમાં લલકાર થઈ જશે, बैयतना જે તાલીબ છે એ ફિન્નાર થઈ જશે। તો ઇસ્લામ તને બચાવવા હવે આવે છે ઈ અલી, કે જેની મુસ્કાન તારા જીતનું હથિયાર થઈ જશે, જેની મુસ્કાન તારા જીતનું હથિયાર થઈ જશે। અને તર્કશ, તર્કશ એટલે કે એ બેટ જેના અંદર તીરો રાખવા માટે સૈનિકો તીરો રાખતા હતા એને તર્કશ કહેવાય। સમાજ કરજો બધાએ કે बैयतना જે તાલીબ છે ફિન્નાર થઈ જશે, આબિદથી જો દરબારમાં લલકાર થઈ જશે। અવા તો હુરમલ ને કોને ખબર કે હુર જે છે બાતિલનો સિપાહી, એક રાતમાં સર્વરનો વફાદાર થઈ જશે। ઇસ્લામ તને બચાવવા હવે આવે છે ઈ અલી, જેની મુસ્કાન તારા જીતનું હથિયાર થઈ જશે। તો આવવા તો દો હુરમલાને, અલી અસગરના મુકાબિલ એની તર્કશના બધા તીર પણ બેકાર થઈ જશે, તીર પણ બેકાર થઈ જશે। અને મૌલા મક્તા છે કે મૌલા તારા તને ખુદ મળવા આવશે અઝાદાર, મૌલા તારા મળવા તને ખુદ આવશે અઝાદાર, જો ખૈરીલ અમલ વાળો તારો કિરદાર થઈ જશે। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे, क्या कहने इनकी अशार और उनकी शायरी के, मौला सलामत रखे। माहौल बहुत ही बर्फ़ जैसा ठंडा हो चुका है, इसको गर्म करना मुझे आता है। अभी देखता हूँ 2 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद 4 मिसरे और पढ़ूंगा। अगर इन 6 मिसरों में आप बेदार नहीं हुए तो 100 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद शायर आएगा। जितनी देर मैं खड़ा रहूँगा इतनी देर आप भी बैठे रहेंगे। समाज फरमाएगा कि ये ज़रूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर, ये ज़रूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। कहाँ बैठे आप लोग, क्या सुन रहे हैं? कि ये ज़रूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। और जलने और जलाने की बात आई है तो 4 मिसरे फैज़ कानोदरी साहब के सुनिए कि महसूस हो रहा है ज़माने के हाल से, महसूस
क्या महसूस हो रहा है? कि महसूस हो रहा है जमाने के हाल से 2-4 दिन की बात है, वो आ ही जाएंगे। 2-4 दिन की बात है, वो आ ही जाएंगे। महसूस हो रहा है जमाने के हाल से 2-4 दिन की बात है, वो आ ही जाएंगे। तो हर दुश्मने हुसैन को अब्बास मारेंगे, हर दुश्मने हुसैन को अब्बास मारेंगे, हर दुश्मने बतूल को मेहदी जलाएंगे। जलाएंगे हर दुश्मने बतूल को। बेशक उन्होंने ऐसी खता की, बल्कि ऐसा गुनाह किया, अजीम गुनाह किया कि दरे बतूल पे आए तो लकड़ियाँ लेकर। लेकिन आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि महसूस हो रहा है ज़माने के हाल से 2-4 दिन की बात है, वो आ ही जाएंगे। हर दुश्मने हुसैन को अब्बास मारेंगे, हर दुश्मने हुसैन को अब्बास मारेंगे, हर दुश्मने बतूल को मेहदी जलाएंगे। इन्हीं मिसरों के साथ में बहुत अच्छी आवाज़ और पुरानी शायर हमारे कांवदर की शान यानी कि अली हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आए और चंद मिसरे आपकी समातों नज़र करें। उनके इस्तकबाल के एक नारे सलवात। बराए ताजिल इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ बुलंदतर सलवात। सबसे पहले आप सभी हजरात को बिलखुसूस अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में इस शहादत की मुबारकबादी पेश करता हूँ। इन दुआओं के साथ कि परवरदिगार आलम जिस मकसद के तहत ये बिल्डिंग तामीर की गई है उसमें अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक मतला और एक शेर ईद गदीर के हवाले से बतौर ख़ास समाअत फरमाएगा। फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे, कि फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे, बुलंदियों का वो मंजर कहाँ से लाओगे, बुलंदियों का वो मंजर कहाँ से लाओगे। तो बयान अपनी बड़ाई का यूं कहीं भी करो, के बयान अपनी
मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। बस इसी तरह आपकी आमादगी होनी चाहिए, जिस तरह आप अभी सुन रहे हैं बाकी शोराओं को भी इसी तरह सुनेगा। एक मतलब एक शेर फरमाइश है हमारे दोस्त लोगों की, कि आप अली भाई पढ़िएगा, उनकी गुजारिश है, तो बस मैं पढ़ रहा हूँ कि दिल से या अली कह दो, देर तक दहन महके, के दिल से या अली कह दो, देर तक दहन महके, तो पढ़ के नाम दम कर लो, तो सदा बदन महके, तो पढ़ के नाम दम कर लो, तो सदा बदन महके, तो इसलिए बहातर गुल, इसलिए बहातर गुल चुन के लाए थे मौला, ताकि इनकी खुशबू